Hello friends, hope you are good. So far we have covered 49 lectures and this is our 50th lecture, okay, of unit number 5, that is design of engine component. And today we are going to look into the some terms or some definitions of flywheels. So let's get started with this session. So before going towards the terms, you have to understand this concept. So the torque of the crankshaft, okay, the torque of the crankshaft, it is also known as turning moment, okay. Turning moment is nothing but torque, okay, and the formula of torque is nothing but the force into distance, in fact perpendicular distance, okay. So turning moment is also known as torque, okay, and it is largely depend on two factors, okay. The first one is in cylinder gas pressure and the second one is inertia forces of the reciprocating parts. I will explain you these two factors with the help of this figure, so please note down this figure. So while suction stroke, this piston moves downward, okay, or in during the power stroke also this piston moves downward because of the gas pressure inside this cylinder, okay. So obviously the more gas pressure inside the cylinder, the more torque generated at the crankshaft end, okay. The more gas pressure generated inside the cylinder, the more torque generated at the crankshaft, clear. And the second one is inertia force of the reciprocating parts. So the reciprocating parts are connecting rod. So as speed increases, the reciprocating parts of this assembly, the inertia forces increases. So this torque is largely depend on inside gas pressure and the inertia forces. So because of this gas pressure, the fluctuates over a complete cycle, ठीक है. जब जब ये फ्लक्चुएशन क्रिएट कब होंगे, आपको पावर स्ट्रोक छोड़ के अदर तीनों स्ट्रोक में, ठीक है, फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा एक कंप्लीट साइकिल में, बिल्कुल. सो द एक्सेलरेशन एंड द डी एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन असेंबली also changes during the motion over a cycle. जैसे जैसे फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन होगा इस पिस्टन्स का. So therefore the turning moment or torque also fluctuates over an entire engine cycle. Are you getting this concept now? जैसे जैसे फ्लक्चुएशंस क्रिएट होंगे, फ्लक्चुएशन क्रिएट क्यों हो रहे हैं, एक तो इनसाइड गैस प्रेशर की वजह से या फिर इनर्शिया फोर्सेस की वजह से. जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होगा वैसे वैसे आपका पिस्टन एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट होगा, तो उस वजह से क्या होगा, आपका ये जो टर्निंग मोमेंट है और टॉर्क है वो भी फ्लक्चुएट होगा. तो इस फ्लक्चुएशन को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं फ्लाईव्हील, क्लियर. So the flywheel is usually coupled to the crankshaft to limit the fluctuation of turning moment and hence the fluctuation of the speed. So I hope you clear this concept. Now let's see some definitions related to this concept. And one more thing is the designing of the flywheel deals with the minimizing this fluctuation of the engine speed, okay. तो डिज़ाइन करना है तो एक्चुअली क्या करना है, हमें फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करना है. So the first definition is for maximum fluctuation of speed, okay. So the difference between the maximum and minimum speed ड्यूरिंग अ साइकिल इज नोन एज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है. अब आपको पता है कि फ्लक्चुएशंस क्या है, ठीक है, फ्लक्चुएशन की स्पीड क्या है, ठीक है. तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन आप कैसे डिफाइन करोगे,
जो भी मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड्स है उसका डिफरेंस, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्लियर है? और सेकंड डेफिनेशन है द रेशो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, जिसकी जिसकी डेफिनेशन हमने अभी देखी, टू द मीन स्पीड इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, जो हमने पहली डेफिनेशन देखी थी, अगर उसको हम डिवाइड कर दिए मीन स्पीड से तो आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। इस सेकंड डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली समझते हैं। सो लेट द n1 इज मैक्सिमम स्पीड इन rpm during the cycle, n2 is minimum speed in rpm during the cycle, and small capital N is mean speed in rpm. So how you define this mean or average speed? n1 plus n2 divided by 2, है ना, बराबर है ना, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपकी मीन स्पीड मिल जाएंगी आपको। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कैसे एक्सप्रेस करोगे मैथमेटिकली? लुक इनटू दिस सेकेंड डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ, मतलब एक चीज़ आपके न्यूमरेटर में आएंगी, एक चीज़ आपके डिनोमिनेटर आएंगी। न्यूमरेटर में क्या आएंगी? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, आ गया n1 माइनस n2। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्पीड। और डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा? मीन स्पीड, दैट इज कैपिटल N। सो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज डिनोटेड बाय द CS, C सफिक्स S इक्वल टू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय कैपिटल N। क्लियर है? तो ये हो गया आपके दो डेफिनेशंस। तीसरा डेफिनेशन है, अगर आप इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को रेसिप्रोकल ले लेते हो तो आपको मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। ठीक है, द थर्ड डेफिनेशन इज फॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन सिंपली। सो मैथमेटिकली small m is equal to 1 divided by CS. The small m denotes the coefficient of steadiness. So in this slide we covered three definitions, the first, second and the third. Now the another definition is for the fluctuation of energy. Previously हमने क्या देखा था? Fluctuation of speed. अब हम क्या देख रहे हैं? Fluctuation of energy. It is defined as the variations of the energy above and below the mean resisting torque line is called as fluctuation of energy. Second definition है, the difference between the maximum and minimum energies is known as maximum fluctuation of energy. इस दोनों डेफिनेशन को मैं आपको और क्लियरली समझाता हूँ इस फिगर के माध्यम से। तो कंसिडर कीजिए टर्निंग मोमेंट यानी कि टॉर्क, और आपको क्रैंक एंगल कंसिडर करना है, जिसके वजह आपको 4 साइकिल्स भी उसके साथ कंसिडर करने हैं, दैट इज सक्शन, कॉम्प्रेशन, वर्किंग, पावर, एग्जॉस्ट। ओके, दिस इज द 4 साइकिल्स एंड it represents the crank angle 0 to 180, 180 to 360, 360 to 540 and the 720. सो निगेटिव लोब्स कैसा होगा? अगर आप सक्शन क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो ग्राफ होता है वो निगेटिव में जाता है ना, निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है तो आपका क्या बनेगा? एक निगेटिव लूप बनेगा। जो सक्शन, उसके बाद पॉजिटिव लूप होता है, फिर से कंप्रेशन के टाइम पे निगेटिव लूप जाता है, और मैक्सिमम पॉजिटिव लूप मिलता है आपको ड्यूरिंग वर्किंग साइकिल और ड्यूरिंग पावर साइकिल। ठीक है, और फिर से निगेटिव लूप जाता है और उसके बाद फिर से पॉजिटिव लूप आता है। तो जैसे ही मैं इसमें एक मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन कैलकुलेट ड्रॉ करूँगा, जो कि यहाँ पे रेड कलर में डॉटेड से आपको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये है मीन रेजिस्टिंग टॉर्क। आपका जो एवरेज टॉर्क होता है वो रिप्रेजेंट करता है दिस लाइंस को। अब फिर से इस डेफिनेशन के पास आइए। द फर्स्ट डेफिनेशन इज फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, the variation of energy
अबव एंड बिलो द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन। तो आपका जो वेरिएशन हो रहा है इस एनर्जी का बिलो और अबव, तो ये कहलाता है आपका फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? सेकेंड डेफिनेशन में देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जीज इज नोन एज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। आपकी ये एनर्जी देखो कैसे नेगेटिव लूप में जा रही है, ये एनर्जी आपकी पॉजिटिव लूप में मैक्सिमम जा रही है। तो इस दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होगा। होप आपको ये क्लियर हो गया है। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। प्रीवियस हमने स्लाइड में क्या देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। So it is defined as the ratio of the maximum fluctuation energy to the work done per cycle. It is denoted by C suffix E. तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी CE इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकिल। क्लियर? तो ये है आपके 3 + 3 और 6 डेफिनेशन रिलेटेड टू दिस फ्लाईव्हील।